Hello, guys, welcome back to another episode of Podcast Praised by Taman. The series name is Mind Over Everything. This is episode 7, and today we are talking about one of the hardest thing a human can ever do, letting go of the past. Not because we are weak, but because sometimes holding on hurts more than releasing. एंड पास्ट का सबसे डेंजरस पार्ट ये होता है कि वो बदल नहीं सकता। वो हो चुका है, इट इज फिक्स्ड, इट इज डन एंड लॉग्ड। लेकिन हम उसके अंदर फिर भी जितना रहते हैं ना, मतलब हम सोचते रहते हैं ना, उतना ही हर्ट होता है। फॉर समटाइम्स लाइक हम कोई ब्रेकअप हो गया, या दोस्त ने कोई धोखा दे दिया, या फैमिली की फाइट हो गई, या करियर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या बॉस से कुछ बहस हो गई, या एक गलती जो हमें आज भी एम्बैरस करती हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब these things don't leave our mind. Past is like a movie we don't even like, but we keep replaying it daily because we are stuck in the past. We remember words that hurt us, we remember moments that broke us, we remember mistakes we made at our weakest. And the worst part, your brain treats memories like they are happening right now. Same emotions, same stress, same sadness. That's why letting go feels impossible, because your body is still living a moment your life already left behind. So कुछ examples से बात करते हैं कि why people stay stuck in the past and why they are not able to move on, what are the problems they face. So I have a friend, I know him from couple of years. So he told me that he had a breakup 2 years back, and now he is not able to move on. Not because he still loves her, just because जो उसका वो दर्द, जो उसको पेन, जो जो उसने वो ट्रॉमा झेला, वो उसको इतना दर्द दे गया, मतलब उसको इतना पेन दे गया कि वो सोच ही नहीं पा रहा है कि मैं किसी से प्यार कर सकता हूँ वापस। He didn't hold on to the girl, he held on to the trauma, and trauma gave him the situation, I would say, a bad opportunity to stay stuck in the past. कि भाई तू वहीं बैठा रहे, तू मत बढ़ आगे। एक और एग्जाम्पल से बात करते हैं। सो एक बंदा आया, मेट हिम इन अ जिम एंड ही स्टार्टेड ऑनलाइन बिजनेस। वो कुछ खास चला नहीं और उसने थोड़ा पैसा गवा दिया अपना, ही लॉस्ट हिज मनी, बट द अमाउंट वाज नॉट ह्यूज, लाइक 5-4 lakhs, but for him it was big. And ever since that one failure, he never tried again. Any business ideas come, he says no bro, risk नहीं लेना है मेरे को। मतलब वो इतना घबरा गया है, इतना डर गया है कि उसको सेफ चलना है बस। उसको इतना डर लग गया है कि भाई अभी भी सिर्फ 5 लाख गवाए हैं, कल को मैं 10, 20, 25 पता नहीं कितने गवा दूं। One failure became his entire identity, his past became his present because of that failure. Another example, let's talk about a girl. She had a best friend in school, बहुत अच्छी bonding, and one day that friend backstabbed her badly and broke her trust. Today she is around like 24, 26, I guess, and still struggling to trust people, even good people, even people who genuinely care for her. Her past betrayal is guiding her that कि भाई relationship अच्छे नहीं होते हैं, do not trust anyone, and they will betray you eventually. And she doesn't even realize it कि it is hampering her future and future relationships. So let's talk about why letting go is painful, why it feels painful. Because letting go isn't about forgetting, it's about accepting that the story didn't end the way you wanted, the person didn't turn out how you imagined,
The moment wasn't up as perfect as it felt. Your decision wasn't the best one. Your situation wasn't fair. Letting go is grieving the version of life you dreamed of. But here's the truth: you can't build a new home inside the ruins of your old one. Letting go hurts because healing requires honesty, and honesty forces you to face things you have avoided for years. When you hold on to the past, you slow down your future. ये तो आपने खुद देखा होगा कि यार जब आप अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हो ना कि मैं काश ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता, और ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा हो जाता मेरे लिए। ये अगर कितना अच्छा हो जाता तो क्या ही हो जाता। बट एक बात तुमने ये सोची कि इन सब चीज़ों की वजह से तुम अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो। प्रेजेंट खराब कर रहे हो, अपना फ्यूचर भी खराब कर रहे हो। मतलब ये बात मैं वापस बोलूँगा, मैंने एक पुराने पॉडकास्ट में ये बात बोली थी कि कृष्ण जी ने कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बात सच है कि डू योर डीड एंड डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट। जो आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में है, आप करो, और फल की चिंता मत करो। जो मिलना होगा मिल जाएगा। तो भाई पास्ट भी उसी तरीके से है ना, आपने अपनी कोशिश करी, आपने मेहनत करी, आपको वो चीज़ नहीं मिली तो अच्छा ही होना होगा यार। मतलब ये लिखा गया है हमारे गीता में, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में सब लिखा गया है कि ये बोलते हैं कि जो बीत गया वो बीत गया, जो अभी है उसको संभालो। और पास तो था ना, चला गया भाई, खत्म होगा। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। When you hold on to the past, you become emotionally tired, you become mentally stuck, you start doubting people, you start doubting yourself. Your past becomes your decision maker, it becomes your filter for relationships, it becomes fears in new opportunities, it becomes your insecurity in love, it becomes your hesitation in career. You will not grow if you stuck onto the past, and you will see that भाई मेरे को रिस्क लेने से भी डर लगता है, मेरे को अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है, मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। भाई डिसीजन ही नहीं हो रहा ना, तुम सोच ही नहीं रहे हो, तुम करना ही नहीं चाह रहे हो, तुम उस बात पे अटक गए हो कि ये नहीं चला या ये मेरे साथ खराब हो गया। Holding on doesn't protect you, it just stops you from experiencing a better life. एक एग्जाम्पल है जेके रॉलिंग्स, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी, पता नहीं कितने सारे पब्लिशर से रिजेक्ट हुई थी, और अब हैरी पॉटर भाई कब से बन चुकी है, मतलब नहीं, मैं कौन 6th 7th में था जब उसका लास्ट पार्ट आया था। बुक्स तो पहले लिख दी थी, मतलब जो वो मूवी बनी थी तो आई वॉज इन 6th और 7th, पता नहीं 2014-15 की बात है, 16 की बात है, या उससे पहले की, आई डू नॉट रिमेम्बर। भाई मैं अभी भी वो मूवी देखता हूँ और बड़े मज़ा आता है मेरे को तो देखने में। वो मूवी इतनी अच्छी है, वो स्टोरी इतनी अच्छी है। तो भाई अगर वो फेलियर से डर जाती, वो अपने पास्ट को लेके बैठ जाती कि भाई मेरे साथ तो मेरी बुक पहली अच्छी नहीं चली, मेरे पब्लिशर ने मेरे को मना कर दिया, तो भाई आज वो जेके रॉलिंग नहीं होता यार, वो कहीं और ही होती। The truths about letting go. First point, that is कि भाई कोई बंदा आपको क्लोजर नहीं देगा। Closure is not something people give you, it is something you decide for yourself. किसी का वेट कर रहे हो तुम कि वो आके तुम्हारे को अपोलोजाइज करे, या वो तुम्हें आके एक्सप्लेनेशन दे कि मैंने ये करा तो वो हुआ था, या मैंने इसीलिए ये कर दिया, और तुम्हारे को सॉरी बोलेगा। वेटिंग फॉर देम टू अंडरस्टैंड योर वर्थ, भाई दिस वेट कैन लास्ट अ लाइफ टाइम। चूज क्लोजर एनीवे।
तुम वेट करते रह जाओगे, वो कब का आगे बढ़ चुका, तुम वहीं बैठे हुए हो। अबे तुम्हारी खुद की लाइफ है, तुम अपने बारे में सोचो ना। सेकंड पॉइंट इज हीलिंग टेक्स टाइम एंड दैट्स ओके। It's okay to feel weak, it's okay to cry, but some days you feel strong, and some days you miss something you shouldn't. Some days you hate yourself, and some days you suddenly smile again. Healing is not linear. It is like a stock market bar chart, like कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुछ कभी कुछ। तो चलता रहेगा, ये लाइफ है, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। थर्ड, you cannot change what happened, but you can change the meaning. मतलब हम सोचते रहते कि यार उसने मेरे को धोखा दे दिया, like it was a betrayal. Maybe it wasn't a betrayal. और हमें कभी लगता है कि यार मैं अभी मतलब मैं कुछ कर रहा था, like for me it was right, but it was a redirection. Maybe it was a redirection. Yes, it was a redirection. Maybe वो failure नहीं था. Maybe it was just a time that will give you to prepare for your future, for your better growth. Maybe it wasn't loss. Maybe it was space for something better. Meaning is in your hand, in your mind, what you will understand from the outcomes. हाउ टू फाइनली लेट गो, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूँ। मतलब मैंने बहुत बातें बना दी कि ऐसे है वैसे है, ये करना चाहिए, वो होना चाहिए, क्लोजर वगैरह वगैरह सब बताया मैंने। बट एक कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताता हूँ कि सो दैट यू कैन स्टार्ट लेटिंग गो थिंग्स एंड वर्क ऑन योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फर्स्ट स्टेप is acknowledge what happened without sugarcoating it. भाई मतलब दर्द था, चीज़ें ख़राब हुई, मेरे साथ ये फेलियर हुआ, मेरे साथ मैनेजर ने ये बात बोल दी, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, ठीक है भाई। पेन doesn't leave until it's fully felt. तो भाई फील कर लिया, आपने सोच लिया, सब खराब कर लिया, सब खराब हो गया, ख़त्म करो, आगे बढ़ो। उसको बैठ के शुगर कोट मत करो कि हाँ भाई ये होता कितना अच्छा होता ना, हो गया, वो ख़त्म, चिल, रिलैक्स, डन, व्हाट इज इट इज डन, ख़त्म। स्टेप 2, स्टॉप रिपीटिंग द स्टोरी। एवरी टाइम यू रीटेल द पेनफुल मोमेंट, you reopen your wounds. Do you want that? सिंपल क्वेश्चन है भाई, तुम चाहते हो क्या? मतलब मैंने बहुत लोगों को सुना है ऐसे बात करते हुए कि भाई वो मतलब बात करते हैं जैसे किसी का ब्रेक हो गया तो बोल भाई वो मुझे छोड़ गई, या भाई वो मुझे छोड़ गया। अबे छोड़ गया, ख़त्म करो ना यार। आई नो इट वॉज पेनफुल, आई नो इट हर्ट्स, बट इट इज़ टाइम टू मूव ऑन। स्टेप 3, रिमूव द इमोशनल ट्रिगर्स। पुरानी फ़ोटोज़, पुराने टेक्स्ट, पुरानी जगहें, सॉन्ग्स, मेमोरीज, भाई सब हटा दो, डिलीट कर दो यार। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें उसके अंदर बैठे ही नहीं रहना है। हीलिंग इज़ हार्ड व्हेन यू आर फीलिंग द वुंड्स, सो स्टॉप एंड लेट गो। स्टेप 4, स्टार्ट न्यू रूटीन्स। योर ब्रेन नीड्स न्यू एक्सपीरियंसेस टू ओवरराइट ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स। पहले अगर जिम नहीं जाते थे तो जिम जाना शुरू कर दो, पहले वॉक करने नहीं जाते थे तो शुरू कर दो, पहले कोई सैड सॉन्ग सुनते थे तो पॉप सॉन्ग सुनने लग जाओ, कुछ अलग करो भाई। पहले बुक्स नहीं पढ़ते थे, बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, अपने लिए टाइम निकालो, कुछ नया करो, सो दैट जो पुरानी बातें थी, पुरानी चीज़ें थी, पुराना योर सेल्फ था, वो ख़त्म हो जाए। यू नीड योर न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, राइट? Step 5 is separate the person from the lesson. The person may be gone, but the lesson stays. Honor the lesson,
रिलीज द पर्सन। भाई मैं मतलब मैंने एक चीज देखी है, हम लोग ना एक कुछ गलत हो जाए तो हम सोचते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं कि ये हो गया वो गया। मे बी इट वॉज अ लेसन फॉर यू टू लर्न एंड बिकम अ बेटर version of yourself for tomorrow so that you can handle again if it happens. तो लेसन समझो, पास्ट कभी खराब नहीं होता। पास्ट अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो ठीक है, लेसन था, सीख लिया, गलती हो गई, समझ गए, आगे से नहीं होगा, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आई नो बोलना आसान है, बट करना तो आपको खुद के लिए है ना, तो खुद करोगे ना। लोग तो ज्ञान देते रहते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी बोल के चला जाऊंगा, बट मेहनत तो तुम्हें करनी है ना, करना तो तुम्हें खुद के लिए है ना। मैं तुम्हें बस बता सकता हूँ कि ये चीज़ें करो, पर करना तुम्हें ही है, मैं तुम्हारे अंदर घुस के नहीं कर सकता। स्टेप 6, रिमाइंड योरसेल्फ द पास्ट इज अ प्लेस ऑफ रेफरेंस नॉट रेजिडेंस। यू कैन लुक बैक बट यू डोंट नीड टू लिव देयर। पास्ट अगर अच्छा था तो देखो, बुरा था तो भी ठीक है, पीछे देख लो, एक बार समझ जाओ, लेसन लो, आगे बढ़ो बस। उसके बैठ के घर मत बना लो वहाँ पे, उसको सोचते मत बैठो हर वक्त। ठीक है, जो था वो हो गया, ख़त्म करो। लेट मी आस्क यू समथिंग, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लुक्ड एट योरसेल्फ एंड सेड आई डिजर्व बेटर नाउ? When was the last time you gave yourself permission to outgrow your past? When was the last time you forgave yourself for not knowing better earlier? And when was the last time you asked yourself, what if my best days haven't even started yet? Think about it. You are not defined by your past, you are shaped by it, not trapped by it. Life is not asking you to erase your pain, it is asking you to outgrow it and become the best. So, tonight, before you sleep, place your hand on your heart and remind yourself you are allowed to heal, you are allowed to move on, you are allowed to dream big, and again, you are allowed to be happy again. You are allowed to do anything you want. Your past is a chapter, not your story, and the next pages, they are waiting for you to turn them. Do your best and do it. Do it today, do it now. कोई नहीं आने वाला आपको पकड़ के करवाने के लिए, कोई नहीं आने वाला आपकी हेल्प करने के लिए, आपको खुद करनी है। वो बातें हैं जो लोग बनाते हैं कि भाई हम बैठे हैं, हम करेंगे तेरी हेल्प, कोई नहीं आता भाई। वो बातें सुनते हैं और चले जाते हैं। आपको अपने पेन से डील करना पड़ेगा, आपको अपने फ्यूचर पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने प्रेजेंट पे काम करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, कोई नहीं आने वाला। सो डू इट नाउ, डू इट टुडे, जस्ट डू इट, do not think about it. I know I'm leaving this episode at a very serious note, but I know you will do it. I know the audience will do it. They will give their best and be a better version of their self. This is Taman Singh from the episode 7, Letting Go of the Past. Series name is Mind Over Everything. Take care of your heart. It has been through enough. Now it's time to let it grow and let it go. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए रिलैक्स करो और अपने ऊपर काम करो।